All right, so let's get started with the problem for this episode. That is this, the problem number 12th. Okay, let's read it. Okay, that is counting vowels and consonants in a string. ठीक है, simple है problem. You can read it here. कि write a program. We have to actually write a program to count vowels and consonants in a given string. Okay, string related problem है, and yeah, you can see the output input here as well. एक हमें obviously user से string enter करना है. ठीक है, user will enter as a string that could be anything, hello world or anything like that. And yeah, make sure this thing that ये जो string जो यहाँ पर जो string enter होने का जो eligibility है kind of आप देख सकते हो वो not only वो one word तक सिर्फ limited नहीं है. The thing I'm trying to say is that वो जो string है हम user से enter ले रहे हैं that can be of multiple words. ठीक है, basically that can be of multiple words and that they can be separated by spaces. ठीक है, like यहाँ पर है जैसे hello world. Okay, so yeah, this is the string that the user is going to enter. We have to output the number of vowels of that particular string in that particular string. That is आप hello world में अगर आप count करो, if I open this Excalibur, if you write hello world, if you count this, okay, just I would urge you to count the vowels in this, and you know vowels होते हैं A, E, I, O, U. ठीक है, these are the 5 vowels. Okay, so you can clearly count E, O, O. So basically 3 यहाँ पर आप देख सकते हो. वॉवल काउंट जो है हमारा बेसिकली वॉवल्स यहाँ पर 3 आ गए. एंड सी दिस इज सो सिंपल. ओके, यू नो दिस राइट कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं, ठीक है, उनमें से ये 5 अगर माइनस कर दो आप तो बाकी जितने भी बचे उनको हम कॉन्सोनेंट्स ही कहते हैं. ठीक है, सो या ई, ओ और ये ओ, ये तो अगर आप पूरा इसे काउंट करोगे तो एच ई लाइक 4 and 5 9 है. ठीक है, टोटल 9 कैरेक्टर्स है इस पूरे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. अगर उसमें से 3 वॉवल्स निकल गए सो या द रेस्ट 6 ओके आर द कॉन्सोनेंट्स. ओके, आई होप सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. ओके, सो ये आई होप सो द प्रॉब्लम इज क्लियर राइट. अब हमें इसी चीज़ को हमें कोड करना है, इसी चीज़ को हमें प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है. एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज C++ एंड फील फ्री टू यूज़ एनी लैंग्वेज यू वांट. बट अब इस चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग लेट्स रियली क्विकली डीप डाइव इनटू द कोड बिट ऑफ पार्ट डायरेक्टली, बिकॉज उस हम कोड करके ही हम वाइल वी कोड आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक एंड एवरीथिंग. ओके, एंड दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस प्रॉब्लम इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. बस कुछ चीज़ों नई चीज़ में भी आप यहाँ पर एक चीज़ सीखोगे. एंड दिस न्यू थिंग विच आई विल टीच यू द एल्गोरिदम. एंड एक एल्गोरिदम लाइब्रेरी हम इम्पोर्ट करेंगे एंड दिस फाइंड फंक्शन एंड ऑल. This will eventually help you for a long term. Okay, so this is a great opportunity for you to learn this. So let's get started, right? So yeah, this is the problem number 12. This is problem number 12. So 0, 1, 2. Yeah, and let's name it as vowel consonants, right? Consonants.c++. Okay, now let's start with the boilerplate code and all. So yeah, and yeah, string तो हमें लगेगा इस particular उसमें, तो हमने import कर लिया पहले से ही. Okay, using the standard namespace, yeah, using the standard namespace, and then let's write our main function. Okay, with a return 0. Okay, now the thing is हमें एक string input लेना है user से. So let's give the data type a string, and आप नाम कुछ भी देख सकते हो उस variable का. I am giving the variable name as the str. Okay, feel free to give any name you want. Then इसके बाद द स्ट्रिंग, देन अब इसके बाद नाउ हियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग जो हम इनपुट ले रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी जो है सिर्फ 1 वर्ड तक लिमिटेड नहीं है. सो मैं एक्चुअली ये इसलिए मैं आपको यहाँ पर एम्फोसाइज किया बिकॉज सी अगर सिर्फ एक वर्ड का स्ट्रिंग इनपुट लेना होता सो वी कैन यूज़ सिंपल सीन, एंड हम सिंपल सीन लिख के हम ऐसे input ले सकते थे. But in this case user will obviously go in the console and they will say for example do like this shubh chak like this. Okay, so you can clearly see कि they'll enter a string, they'll enter a word, then hit space, then enter the next word actually. So scene यूज़ करने से क्या होता है ना कि जो फर्स्ट जो आप वर्ड रहेगा ना वहाँ तक ही बस जो आपका सीन है वो बस इनपुट ले पाएगा. उसके बाद का जो जितने भी अगर आप वर्ड्स लिखो या फिर कैरेक्टर्स लिखो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है. ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई एज वेल. ओके, मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर केस में मैं सीन करता हूँ 10 str. इसके पहले एक मैसेज देता हूँ. ओके, एंटर योर स्ट्रिंग.
okay, with a semicolon, and let's try to print this string. Okay, I hope so this much code is clear. Then 0 1 2, then I would run the file as well. Now the thing is, अगर आप देखना यहाँ पर बोलेगा इंटरेस्टिंग. ओके, आई एम एंटरिंग शुभ. देखो मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पर एंडल भी लगा देते हैं, सो यार इट विल बी मोर विजिबल टू यू. ठीक है, सो एज आई होप सो इट वॉज विजिबल टू यू. ठीक है, मैंने सिंपल एक मैंने वर्ड लिखा, सिंपल वो एक्सेप्ट कर लिया, इट गॉट प्रिंटेड इन द स्क्रीन एज यू कैन सी शुभ. बट हियर्स द कैच, अगर मैं एंटर करूंगा शुभ स्पेस हेलो वर्ल्ड, यू कैन क्लियरली सी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड आया, हेलो वर्ल्ड उसके बाद आया ही नहीं. सो टू गेट रिड ऑफ दिस, टू बेसिकली फिक्स दिस, वी डोंट यूज जस्ट सीन एनी मोर इन दीज पर्टिकुलर केसेस. हम यूज करते हैं गेट लाइन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, वी यूज गेट लाइन, एंड गेट लाइन बेसिकली फंक्शन है, इसके अंदर हम दो चीज पास करते हैं. द फर्स्ट पैरामीटर विल बी द सीन ऑपरेटर, द सेकंड पैरामीटर विल बी द वेरिएबल in which we are trying to store the variable, and you'll see all the errors will go on. And अब अगर आप लिखोगे शुभ इसके बाद आके आप प्रॉपरली लिखो शुभ हेलो वर्ड, आप जितने भी वर्ड दो वो सब चीज आप देख सकते हो क्लियरली, सारे वर्ड्स को वो कैप्चर किया एंड इट स्टोर्ड इट, ओके, इन दैट वेरिएबल. सो या दिस वाज द कैच इन दिस particular case. तो या we have the string. okay, we use the getLine function to accept it. Now अब there's the most important thing कि हम वो logic properly कैसे implement करेंगे, कि we have to obviously write, we have to count how many number of vowels are there and consonants are there. okay, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट एन एरे. ठीक है, एक एरे हम बनाएंगे जिसमें हम जितने भी वॉवल्स है पॉसिबल, जितने भी वॉवल्स रहते हैं वो हम पुट कर देंगे. सो जस्ट ऑब्वियसली आई होप सो एंड सी इस पर्टिकुलर केस में आप वेक्टर आप ना ही दो, मतलब क्योंकि वेक्टर का ऐसा काम नहीं है. वी जस्ट नीड एन एरे. सो जस्ट फील फ्री टू गिव, सी इफ यू वांट यू कैन यूज द वेक्टर, इफ यू वांट लाइक डायनामिक कुछ चीज़ें यहाँ हो नहीं रही, इसलिए आप सिंपल आप कैर. ओके, ऑब्वियसली द डेटा टाइप, द एरे एलिमेंट्स डेटा टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एरे हम जो भी बनाएंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब हम जैसे वॉवल्स का एक एरे बनाते हैं, जस्ट कोई भी आप नाम दो तो हम वॉवल्स नाम देंगे. तो इसमें बेसिकली हम जो भी एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं वो ए ई आई ओ यू, एक्चुअली ये 5 एलिमेंट्स होंगे. सो दैट्स वाई ए ई आई ओ यू ये होगा, मतलब कैरेक्टर है तो हम कैर देंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक यहाँ पर आप लेंथ दे दो, तो यू नो ए ई आई ओ यू, सो 5 आ रहा है, सो 5 आप दे दो यहाँ पर, ए ई and this O and U. okay, I hope so this much is clear. आप देख सकते हो कि हमने एक vowels नाम का, ठीक है, हमने एक vowels नाम का एरे बना लिया जिसमें we have stored all the 5 vowels. ठीक है, now now इस पॉइंट पे हम देखो हमको 2 काउंट निकालना है. ठीक है, फर्स्ट इज int vowel count, obviously we will initialize it to 0. second is the consonant count. या फॉर श्योर, लाइक आई होप सो दिस इज क्लियर. ठीक है, अब तक काफ़ी हम ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, सो आई होप सो ये आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हो ही गए होंगे. हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू मेंटेन अ वेरिएबल. ठीक है, एक काउंट मुझे मेंटेन करना है. वी विल रन सम लूप जिसमें हम चेक करेंगे कि अरे ये अगर कैरेक्टर वॉवल निकल गया, सो वी विल इंक्रीमेंट दिस वॉवल काउंट. सो 0 विल बिकम 1 2 3 एंड अप टू how many number of vowels are present in that particular string. ठीक है, and so on and so forth for the consonant and all. ठीक है, नाउ वी हैव टू रन अ लूप. अब देखो सिंपली फील फ्री टू रन ये आप इंट आए करके आप जो नॉर्मल लूप चलाते कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने आपको ये लूप ट्रैवर्सिंग करना बताया था. ओके, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट हियर कि आपको सिंपली जैसे पाइथन में इफ यू रिमेंबर ऐसा होता है फॉर आई इन रेंज करते हो, वो हट के फिर ट्रैवर्सिंग आप करते हो फॉर आई इन ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ठीक है, सो ये पाइथन में करते हो. उस चीज़ को ट्रैवर्स करना C++ में कैसे ट्रैवर्स करते हैं, आई एम शोइंग इट टू यू. उसको ऐसे करते हैं कि आप फॉर लिखते हो, सिंपल वही सिंपल फॉर, उसके ब्रैकेट के अंदर आपको पूरा लिखना है. सिंपल, सबसे पहले आपको टाइप लिखना पड़ता है कि जो आप ट्रैवर्स करके जो एलिमेंट्स आप होल्ड करोगे उन एलिमेंट्स का टाइप क्या रहेगा. सो ऑब्वियसली देयर आर 2 ऑप्शंस. या तो आप ऑटो दे दो. ऑटो करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इट अंडरस्टैंड्स कि क्या टाइप होने वाला है. बट इफ़ यू डोंट, अगर आपको पता है कि क्या टाइप है, सो इट इज़ बेटर टू गिव द टाइप दैट इज कैर. वी नो बिकॉज हमें एक्चुअली इस द स्ट्रिंग जो यूज़र ने इनपुट दिया है इसमें हमें लूप रन करना है. सो वी नो कि आफ्टर रनिंग द लूप, आफ्टर ट्रैवर्सिंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कैरेक्टर होने वाले हैं. वी कैन सिंपली गिव इट, फील फ्री टू गिव इट एज कैर ऑटो, बट या विल गिव इट एज कैर.
देन आप सिंपल वो आइट्रेटिंग या फिर जो आइट्रेटिंग या फिर लूपिंग ऑब्जेक्ट जो भी देना चाहो, आई एंड वट एवर यू वॉन्ट, आई एम टेकिंग इट एज CH, दैट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, लाइक सिंपल, फील फ्री टू गिव एनी नेम यू वॉन्ट। देन कोलन, ठीक है, मीन्स कोलन आप यहाँ तक क्या किया आपने कि वही फॉर आई इन वाली चीज़ की, कि इसमें अब आपको ये आपने डेटा टाइप, ये डेटा टाइप है और ये उसका आइट्रेटिंग बस एक ऑब्जेक्ट है। अब किस में आपको आइट्रेट करना है, आपको वो मेंशन करना पड़ता है। सो मेंशन द स्ट्रिंग एंड देन सिंपली स्टार्ट द लूप एंड यू एंटर, सिंपल, इतना ही आपको करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी हैव टू बेसिकली चेक, सबसे पहला कि हमें बस इतना ही चेक करना है कि जो वो कैरेक्टर है क्या वो इस पर्टिकुलर एरे में लाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल वी विल बेसिकली इंक्रीमेंट द काउंट, अगर ऐसा नहीं है सो वी विल इंक्रीमेंट द कॉन्सोनेंट काउंट, दैट्स इट। द थिंग इज अब ये एक चीज़ कैसे करना है यहाँ, ऑब्वियसली C++ में दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस फाइंड, ये फाइंड एक हम फंक्शन यूज करेंगे। दिस फाइंड फंक्शन कम्स फ्रॉम द ऑब्वियसली लाइब्रेरी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है, सिंपल आपको एल्गोरिदम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जस्ट राइट इट करेक्टली, ओके, एल्गोरिदम लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें एक फाइंड फंक्शन आता है, व्हाट दिस फाइंड फंक्शन डू, सिंपल एज दैट, मैं बता रहा हूँ। इफ आपको कंडीशन देना है, इफ फाइंड, ठीक है, सो सी फाइंड, अब यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फाइंड क्या क्या करता है। सो ये जो फाइंड है, फाइंड तो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेसिकली 3 पैरामीटर्स हम पास करते हैं इसमें से। फर्स्ट पैरामीटर इज द स्टार्ट, देन सेकंड इज द एंड एंड द थर्ड इज द वैल्यू, ठीक है। कि हम बेसिकली ना सिंपल सी बात बताऊं, इसमें क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी कोई भी डेटा है, अब डेटा कंसिडर इट एज द स्ट्रिंग और एन एरे और एनीथिंग, या ऑब्वियसली इस केस में हमारा एरे है वॉवल्स एरे, सो यहाँ पर हम वॉवल्स एरे ही हम लिखेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड। सो करता कि ये फाइंड फंक्शन करता क्या है ना, कि जो आप ये थर्ड में वैल्यू देते हो उसको वो स्टार्ट टू एंड, इसे आप ऐसे ही रीड करो, बिकॉज ऐसे ही आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा एंड लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओगे कि ये फाइंड फंक्शन क्या करता है। वो जो आपने वैल्यू एंटर किया वो स्टार्ट टू एंड सर्च करता है, अगर उस पर्टिकुलर एरे में वो मिल गया वैल्यू, सी जस्ट हियर मी आउट वेरी केयरफुली, तो करता क्या है ये फाइंड फंक्शन की वैल्यू, मतलब वो जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर डेटा में, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इट सर्चेस इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। इसे आपको ऐसे रीड करना आना चाहिए कि दैट वैल्यू इज सर्च्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अगर वो वैल्यू मिल गया ना, सी ऑब्वियसली यहाँ से दो केस आता है, यहाँ से इफ फाउंड का केस आता है यहाँ पर, कि अगर वो वैल्यू मिल गया सो ऑब्वियसली इट रिटर्न्स, मतलब वो कुछ तो मतलब रिटर्न करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट इट रिटर्न्स समथिंग या फिर यू कैन ऑल्सो से रेफरेंस या फिर इसलिए मैं समथिंग बोला कि अगर मैं कुछ एकदम हाई हैंड वर्ड बोल दूंगा तो मे बी अभी वो समझना है। इट यू कैन ऑब्वियसली कंसिडर इट एज इट रिटर्न समथिंग पॉइंटिंग टू दैट वैल्यू, ठीक है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ओके, कि अगर वो जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टार्ट टू एंड सर्च करने से मिल गया कहीं ना कहीं, ठीक है, इफ फाउंड, तो वो कुछ तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, उससे एसोसिएटेड, उससे एक लिंक्ड एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। बट अगर न, ये तो फर्स्ट केस हो गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट फाउंड, सो उस पर्टिकुलर केस में इट रिटर्न्स रिमेंबर दिस एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि मतलब बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट। अब ये है कि इसके पीछे का जो फंक्शनिंग है, ये अंडर द हुड क्यों ऐसा हुआ, कैसे काम किया, ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू गो इन दैट डेप्थ, हमें बस समझना है कि क्या होता है इसमें। सो या आई होप सो दिस इज क्लियर कि वी ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड द एल्गोरिदम लाइब्रेरी, फ्रॉम दैट वी यूज द फाइंड फंक्शन, ऑब्वियसली इन C++। फाइंड फंक्शन में वी पास ऑन 3 पैरामीटर्स, स्टार्ट एंड वैल्यू। इसको हम रीड ऐसे करते हैं कि वैल्यू को स्टार्ट टू एंड फाइंड करता है। इफ फाउंड, सो ऑब्वियसली इट रिटर्न्स समथिंग पॉइंटिंग टू दैट वैल्यू, कि मतलब कुछ अगर अदर देन एंड, ठीक है। अगर अदर देन एंड मतलब वो जो वैल्यू है बेसिकली, वो जो वॉवल है, आई गेस वो जो डेटा है बेसिकली, वो डेटा का एंड अगर रिटर्न नहीं कर रहा है, एंड के अलावा कुछ और रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि हाँ वो जो आप वैल्यू खोज रहे थे वो मिल चुका है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आप अदर लैंग्वेजेस, अदर वर्ड्स में कह सकते हो। सो द सिंपलर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो यही है कि अगर वो वैल्यू स्टार्ट टू एंड पूरा रिसर्च करने से मिल गया उस पर्टिकुलर डेटा में, दैट इज दिस वॉवल, ओके, सो वो कुछ रिटर्न करता है, समथिंग, इट रिटर्न समथिंग, मे बी इट कैन बी इंडेक्स, इट कैन बी रेफरेंस और लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
बट अगर नहीं मिला सो इट रिटर्न्स द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी वो डेटा है एंड जो भी वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, बाय इफ यू नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो अब हम इस चीज़ को यहाँ प्रोग्रामेटिकली कुछ ऐसे लिख रहे होंगे कि ऑब्वियसली फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वैल्यू रहेगा, याद रखना स्टार्ट रहता है। सो अब हाँ लिखते हैं, अब ऐसे ही हम कुछ मतलब जैसे मैं लिखूंगा तो ऐसे ही हम कुछ बेसिकली फाइंड फंक्शन में लिख रहे होते हैं। तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट किससे, वॉवल से, नॉट वॉवल काउंट, वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स मतलब ऑब्वियसली हम इससे वॉवल्स मतलब ऑब्वियसली अभी रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पूरी पैरामीटर्स दिए नहीं है। सो जस्ट चिल, ठीक है, पूरे हम जब लिख लेंगे तब वो हट जाएगा। सो हम ध्यान से आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा पूरे ब्रैकेट्स को भी कंसिडर करना अच्छे से कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द फाइंड फंक्शन हम तीन जो वैल्यूज पास करेंगे, दैट इज सबसे पहले स्टार्ट, ठीक है, और ऑब्वियसली स्टार्ट वैसे नहीं होता, बिगिन होता है, मतलब मैं तो स्टार्ट तो मैं समझाने के लिए वहाँ बोल रहा था, फंक्शन जो रहता है वो बिगिन रहता है, बिगिन में बिगिन वॉवल, ठीक है, बिगिन वॉवल्स, देन एंड वॉवल्स, ठीक है, एंड मैंने कहा क्या कहा था लास्ट में वैल्यू, तो जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं दैट इज दिस सी एच इन दिस केस, सो सी एच, ठीक है, या आई होप सो दिस इज क्लियर। बट अब ये तो हो गया, फाइंड तो हो गया, लेकिन ये अगर हम कहेंगे ये अगर इक्वल नहीं हुआ एंड ऑफ वॉवल के, ये अगर इक्वल एंड ऑफ वॉवल के नहीं हुआ तब वी विल इंक्रीमेंट द वॉवल काउंट। नाउ आई होप सो आपको लगेगा इतना चीज़ क्या कर दिया जल्दी जल्दी। एज आई सेड लास्ट में सिंपल मैंने कहा आपको रीड करना आना चाहिए। रीड ये है कि वैल्यू अगर स्टार्ट टू एंड करने से नहीं मिला, सो मैंने बताया कि यार वो कुछ एंड वॉवल का उस डेटा का एंड रिटर्न करता है, लास्ट में जो है वो रिटर्न करता है। अब अगर मिल गया तो वो कुछ और रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये कि वो ये नहीं रिटर्न करेगा। अगर मिल गया तो इसका मतलब एंड ऑफ वॉवल नहीं रिटर्न करेगा। सो मैंने यही लिखा है कि अगर ये सर्च करने से ये कैरेक्टर मिल गया, सो अगर वो एंड ऑफ वॉवल्स नहीं रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट कि मिल चुका है ये वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर वॉवल्स एरे। सो दैट्स वाई हमने कहा कि ओके ऐसा है तो हाँ वॉवल मिल गया, मतलब वॉवल काउंट हमने इंक्रीमेंट कर दिया। एंड या एज सिंपल एज दैट हमने एल्स क्या कर देंगे, हम एल्स इंक्रीमेंट कर, अब एल्स में क्या कहा था, अगर नहीं मिला तो वी विल से कॉन्सोनेंट काउंट प्लस प्लस। आई होप सो दिस इज क्लियर। एंड अब इस पॉइंट में आके हम सी आउट कर सकते हैं, वी कैन सिंपली से वॉवल्स इन द स्ट्रिंग वॉवल्स, सिंपल हम वॉवल्स लिख देते हैं वॉवल्स और इसमें वॉवल काउंट लिख देंगे एंड दैट्स इट, ओके, एंड विद एन एंड एल एज वेल, ठीक है, एंड देन कॉन्सोनेंट्स में हम दे देंगे कॉन्सोनेंट्स काउंट विद एन एंड एल, दैट्स इट, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हाँ जस्ट डोंट गो, यहाँ छोटी सी एक चीज़ है यहाँ पर, बट या फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हम कोड को हम पहले रन कर देंगे। सो अब एंटर योर स्ट्रिंग। सो ओके मैं क्या करता हूँ, मैं AEIOU सिंपल इतना ही एंटर कर देता हूँ। मेरा स्ट्रिंग ही मैं AEIOU एंटर कर रहा हूँ। यू नो कि 5 आना चाहिए आंसर, बिकॉज यू कैन सी कि भाई सारे कैरेक्टर्स वॉवल्स ही हैं एंड कॉन्सोनेंट 0 आ रहा है बिकॉज नथिंग इज कॉन्सोनेंट है, एवरीथिंग इज ओके। बट या एक चीज़ देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओके पहले अच्छा एक और भी ट्राई कर लेते हैं, लाइक हेलो अगर ट्राई करें हम, वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर दो वॉवल्स है दैट इज E एंड O एंड 3 कॉन्सोनेंट्स है दैट इज H एंड डबल L, ओके, H एंड L एक्चुअली। तो यू कैन क्लियरली सी कि वॉवल्स सब सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ था मैं बता ही रहा था, मतलब थोड़ा सा एक इशू है अभी भी कोड में, जो कि मैं बताऊँगा क्या है। अब एंटर करते हैं, देखिए मैं ऐसे करता हूँ AE एंड स्पेस IO। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स बताओ, ये बताओ, सो यू कैन क्लियरली सी कि मतलब आप चलो मैंने रन कर दिया, आप देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। आप क्लियरली देखो कि चलो वॉवल्स तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास चार है, AEI और O, कॉन्सोनेंट्स तो एक भी नहीं है। यहाँ पर क्यों +1 क्यों हो रहा है, यहाँ पर हुआ क्या इशू कि ये जो स्पेस था ना, इसने उसे स्पेस को काउंट कर लिया और उस स्पेस को भी काउंट करके उसने उसको भी एक कॉन्सोनेंट समझ लिया, क्योंकि हमने हमारा कोड कुछ ऐसा ही लिखा है कि अगर वॉवल मिला तो ठीक है, हमने एल्स में दे दिया सारी चीज़ें। हमने ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा ही नहीं है कोड में कि वो जो हमें बताए कि वो स्पेस है, स्पेस को मत कंसिडर करो एंड ऑल। सो अब क्या चलेगा इतना, नहीं यार ऐसा नहीं होता, हमको ऑप्टिमाइज्ड प्रॉपर कोड लिखना है। सो हमें वो चीज़ इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अगर अब यहाँ पर वापस मतलब मैं वापस एक इफ़ लिख रहा हूँ कि अगर, अब यहाँ पर आई होप सो ये वाला पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ चेक करने वाले हैं कि
अगर वो जो चीज़ वो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, तभी हम चेक करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इफ़ इज़ अल्फ़ा, इस एलनम नहीं, इज़ अल्फ़ा फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर हम कैरेक्टर को देंगे। अगर ये अल्फ़ाबेट हुआ तब ही आप ये जो दो कंडीशंस आप लिखे थे, ऑब्वियसली इसको कॉपी कर लो आप एंड यू जस्ट पेस्ट इट है। सो यही हमने सिंपल किया कि भाई हमने स्टार्टिंग में चेक कर लिया कि अगर अल्फ़ाबेट हुआ तभी आप इसके अंदर आओ एंड देन चेक करो कि ओके एवरीथिंग इज़ गुड एंड या। अब देखो आई होप सो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या इफ़ यू वांट कि अरे ठीक है एल्स देना ही है तो एल्स दे के आप लिख दो कि कंटिन्यू हो जाओ, लेकिन आई होप सो इट्स नॉट नेसेसरी। एक बार रन भी हम करके देख लेंगे, सो नो इशूज़, ठीक है। ओके लेट्स जस्ट रन द प्रोग्राम अगैन एंड ए वापस हम नॉर्मल देते AEIOU। तो देखो आप क्लियरली ऐसे देखो, अभी तो चलो एक गलती हो गई, लेकिन चलो ठीक है, गलती इन द सेंस कि मैंने यू की जगह वाई दे दिया, लेकिन सब सही आ रहा है। एज यू कैन सी कि हमारे पास 4 वॉवल्स थे, एक कॉन्सोनेंट था, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट हमारा जो इशू था क्या वो फिक्स हुआ कि नहीं? लाइक इफ आई गिव AE एंड देन स्पेस IO, इफ आई हिट एंटर, यू कैन क्लियरली सी कि हमारा इशू अब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो जो बग था एक्चुअली इसी चीज़ को बोलते हैं, बग को मैंने फिक्स कर लिया। ओके तो जो बग था वो चले गया। द बग वॉज कि वो स्पेस को भी काउंट कर ले रहा था, राइट। सो हमने सिंपल अब हमने कहा कि भाई अगर अल्फ़ाबेट हुआ तभी चेक करो, नहीं तो चेक करो ही मत कुछ, ठीक है, सिंपल बस आइटरेट हो जाओ, दैट्स इट। सो AE स्पेस आप जितना भी दो आप स्पेस कंसिडर नहीं करेगा। इवन मतलब अगर आप जैसे हेलो या फिर आप सिंपल AEIO डॉट भी कर दोगे तो वो डॉट को भी कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। सो या दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम।